we are going to discuss about the surface energy. What do you mean by the surface energy and how we can calculate its expression, and on the behalf of surface energy possessed by a liquid surface, how we can calculate the expression for the rise in capillarity, that is also known as Xn formula. Okay, so one by one we will discuss. So first of all we have to know what do you mean by the surface energy and what will be its expression. As we are knowing that the surface tension is equals to tension in a surface is equals to that is the force acting per unit of length. Okay, already we have discussed this formula. So now we are going to discuss here surface energy. What do you mean by the surface energy? Okay, let us suppose that if we are having a vessel. Okay, again in both of the chapter, like here mechanical properties of fluid and also as well as that the thermodynamics, each and every time we will just take a vessel into which some amount of fluid will be filled and onto the beer, because this any fluid, either it is liquid or gas, for which we have to define some basic characteristics. That's why we have to take a system. As we are knowing that system, what do you mean by system and what do you mean by universe? What do you mean by system and what do you mean by surrounding? Anyone having any idea about that? Because thermodynamics is also in chemistry, so I am willing to ask that what do you mean by system and what do you mean by surrounding? No one knows what do you mean by system and what do you mean by surrounding? Yes. One. Which is under study or which is under observation is known as a system, and others are the surrounding. Okay. And whole universe has a surrounding. It's a system plus surrounding is equals to universe. First, I am willing to ask what do you mean by system and what do you mean by surrounding? Yes. The system consists of n number of particles and all the systems constitute together the universe. Yes. Sit down. System means that an arrangement which constitutes n number of the particles, and also it is in the context of the center of mass. When a rigid body is said to be a system of n number of the particles. So if any arrangement consists n number of the different things is said to be the system, and which will be in observation, under observation. Whereas a part of the system, with the help of that means we are going to observe the changes in the system, that is known as the surrounding. Okay, if this is a vessel and here we have kept that this is a burner. Okay, so if some amount of fluid is filled inside of this vessel, and with the change in the temperature some characteristics changes of this fluid. Okay, and the combination of the system and surrounding is said to be the universe. पढ़ा भी होगा, ठीक है। आप ऐसे ही देखेंगे कि कभी भी किसी भी वेसल में अगर हमने कोई फ्लूइड रख दिया है और अगर टेम्परेचर में चेंज करते हैं, ठीक है, प्रेशर में चेंज करते हैं, तो ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, व्हाटएवर बी द थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल P is equals to that is nRT, ठीक। तो जैसे भी जो भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं, व्हाटएवर बी द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जैसे भी हम चेंजेस करते हैं और इस फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसे हम ऑब्जर्व करने जाते हैं, तो सिस्टम और सराउंडिंग के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्स, ठीक है। तो हर बार हम क्या करेंगे, एक वेसल लेंगे, वेसल में कुछ फ्लूइड को फिल करेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बेसिक चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द surface energy. What do you mean by the surface energy? Let us suppose that if we are having some amount of fluid which is filled inside of a vessel, and at rest its upper layer will behaves like a thin stress membrane. In the last lecture I have given you the idea. Okay, now we are willing to raise some अगर मान लेते हैं, let us suppose that its surface area was like this. Okay, its surface was level was A1. Now with some means we are willing to raise in its surface area like here till A2. Okay, so it is said to be that is, let us suppose that is delta H is raised in the surface area. तो आप देखेंगे
कि रेस्ट कंडीशन में इसके पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, और अगर हमें रेस करना है इसके लेवल पे, सो वी हैव टू डू सम वर्डन करना पड़ेगा। और वर्डन के लिए क्या होगा, वर्डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स। So we have to, here what we have to do, we have to apply some amount of force, and that force will be exactly opposite to the force of attraction acting between the two molecules just below of the molecules of this level। यहाँ पर भी कुछ मॉलिक्यूल्स इसके करीब में होंगे जो कि सरफेस को अपनी ओर बाइंड करके रखने की कोशिश करेंगे, होगा ना मॉलिक्यूल्स। एक अपर लेयर है, हमने क्या किया, एक बकेट लिया, बकेट में क्या किया कि वाटर को फिल कर दिया, वाटर को फिल किया। अब हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे कि जो बकेट में वाटर का जो लेवल है A1 पे था वो उठ के A2 तक चला जाए, राइज इन लेवल ऑफ द वाटर हो जाए। तो अभी नॉर्मल कंडीशन में हम कहते हैं कि जिस टेंशन से द फोर्स एक्टिंग पर टॉप लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन, ये एक थिन मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर रहा था। अब हमने कुछ फोर्स इस तरीके से बढ़ाया कि इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया बाय डेल्टा एक्स हुआ, ठीक है। तो ये जो हमारा फोर्स होगा वो अपोजिट होगा। देखो अगर ये फोर्स हम अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर लग रहा है तो यहाँ पर वो फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना चाहे। इक्विलिब्रियम मींस दैट a state in which the force acting onto a system should be compensated by each other, okay। The algebraic sum of all the forces acting on a body should be 0, ठीक। तो जब हम जो भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो कंपनसेट होना चाहिए, that is the force of attraction acting between the two molecules which is in the neighborhood of this surface। तो ये जो अभी क्या होगा, जो न्यूली सरफेस जो फॉर्म हुआ है उसके पास दो एनर्जीज होगी, एक क्या होगी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय योर बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और एक कुछ हमने रेज किया है। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय द सरफेस एनर्जी, पूरे कहने का मतलब क्या है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द सरफेस एनर्जी, सो द अमाउंट ऑफ बर्डन टू रेज, ध्यान सुन लो पहले, द अमाउंट ऑफ बर्डन टू रेज द surface area of a liquid by per unit area is said to, that amount of energy is said to be the surface energy of for that liquid। और इसका भी फॉर्मूला आपको डेराइव करके दिखाते हैं, ठीक। as we are knowing that the force which is acting in the upward direction that will be compensated by the force of attraction acting between the two molecules just below to the neighborhood of this the first area। so that force is equal to, earlier we have discussed that F is T is equal to surface tension is equal to F into L, and that opposing force will be directly proportional to 2 into L। अभी लास्ट टाइम हमने बताया था कि F is directly proportional to L, बताया था। आपकी बुक में इस डेरिवेशन के लिखा हुआ है that is 2L। Do anyone have any idea why it is written as 2L? Why it is written as 2L? Why it is written as 2L? बढ़िया बुक में देख के बताइए किस वजह से है। बिकॉज क्योंकि जो फिल्म बन रहा है उसके दो सरफेस होंगे, ठीक है। That's why, and as we are knowing that the force is that normal force is directly proportional to the length। तो अगर हमारे पास जो लेंथ क्या है, दो सरफेस है तो 2L हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमें मिलता है that is T into 2L, ठीक। ये तो हमें मिल गया द फोर्स एक्सर्टेड टू रेज द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड। एंड एज वी आर नोइंग दैट द अमाउंट ऑफ बर्डन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रेज द पर यूनिट ऑफ एरिया इज नोन एज सरफेस टेंशन। अगर सरफेस टेंशन को डिफाइन करना चाहे तो द अमाउंट ऑफ बर्डन टू रेज द सरफेस पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड। अभी यही हम प्रूव करके आपको दिखाते हैं, ठीक। हमने कहा कि फोर्स लग रहा है जो कि हमारे पास दो सरफेस एरिया को दैट इज 2L। प्रोपोर्शनलिटी को हटाया हमें T लगाया दैट इज 2 into L। सो वी हैव टू कैलकुलेट द बर्डन फॉर व्हाट, फॉर इंक्रीजिंग द राइज इन द सरफेस एरिया। पहले सरफेस एरिया A1 पे था, अब A2 पे चला गया, चेंज कितना है, डेल्टा है। सो बर्डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हियर फोर्स इज T into 2L into S। Let us suppose that
2L into x is increase in area, increase in the surface area. What I have said that let 2L into delta x is equals to delta A, and delta A is increase in surface area. Okay, surface area. So what we can write from here, that W is equals to T into delta A. From here what we can conclude, we can write T is equals to W upon delta A. It means that surface tension, अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं ऐसे भी कर सकते हैं कि surface tension is defined as the amount of burden or energy required to raise the surface per unit of surface area of a fluid is said to be the surface tension of a liquid. ठीक, वो burden, वो energy किसी भी liquid के लिए require हो जो किसके per unit area को क्या करे, increase कर दे, is known as that quantity is termed as the surface tension. Is it clear to everyone? ठीक, अभी सरफेस आपको बताया जाएगा कैसे इस फॉर्मूले की बेसिस पे आप कैसे राइज इन कैपिलरिटी निकालेंगे और क्या होता है कैपिलरिटी, व्हाट डू मीन बाय द कैपिलरी ट्यूब. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस. ठीक है, अभी आप कहेंगे कि सर अच्छा कभी कभी एक सोप बबल, आपने सोप बबल का भी नाम सुना होगा. whenever some amount of detergent is poured into some fluid like that is liquid or water, जब कभी भी कुछ हम डिटर्जेंट को क्या करते हैं, सर्फ को क्या करते हैं, अगर पानी में डाल देते हैं तो उस टाइम जैसे ही हम हैंड शेक करते हैं एक लेयर बन जाता है और कभी कभी आप बबल्स देखते होंगे. तो जो बबल बनता है वो किस टाइप का बबल बनता है, कनकेव और कन्वेक्स? सोच के बताइएगा मेरे जाने से पहले. ठीक है, ठीक है, कन्वेक्स बनता है, कनकेव बनता है और उसके कितने लेयर्स होते हैं? 2 लेयर तो सभी को पता है. उसका मेनिस्कस का शेप क्या होता है ये मुझे जाने से पहले बताइएगा, तब तक सोच लीजिए. ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए. लिसन, नाउ व्हाट डू मीन बाय द कैपिलरिटी, व्हाट डू मीन बाय कैपिलरी ट्यूब एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द राइज इन लिक्विड कॉलम इन अ कैपिलरी ट्यूब. ठीक है, जिसे कहते हैं एसएन फार्मूला. जब आपने पढ़ा होगा मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसमें आपने ये भी देखा होगा एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ वेट. Last bench. Beta, what do you mean by projectile motion? Because right now each and everyone is preparing for the final examination. Yes. What do you mean by projectile motion? Don't do. Sit down. Yes, last bench. Janvi. What is the basic difference between the motion in straight line and projectile motion? There are the 2 chapters, motion in straight line, which is excluded from your syllabus, and that is the projectile motion. Sit down. Motion in plane. Okay. So is anyone having any idea about what do you mean by the projectile motion? Yes. When an object initially thrown from rest follows the path of parabola, Okay. and then that motion of the particle. That is called projectile motion. Okay. So in general, if we are willing to give the definition of a projectile motion, then we can say that whenever an object is thrown at an angle theta from the horizontal, then such type of the motion is said to be the projectile motion, and the path acquired by the object is known as trajectory, and if the path is parabola, तो उसका इक्वेशन हम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो आप उस टाइम में भी देखे होंगे कि ओरिजिन से, अगर हमने ओरिजिन से किसी भी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर हमने फेंका, ठीक है, लेट अस सपोज दैट दिस इज प्रोजेक्शन एंगल इज थीटा, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट के हाइट में राइज होगा, फिर धीमे धीमे डिक्रीज होगा. तो हम 2 चीज निकालते हैं, पहले टाइम ऑफ एक्सेंट t1 एंड देन टाइम ऑफ डिसेंट t2, और इन दोनों को ऐड कर देते तो टोटल टाइम निकाल लेते, जिसे कि हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. Am I right? ठीक, अगर आप टाइम ऑफ एक्सेंट निकाल लेते हैं, उसी से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल टाइम हमें मिल जाता है. तो सेम इसी तरीके से
हम ये कहने जा रहे हैं कि हमें टाइम ऑफ एक फॉर्मूला निकालना है, कैसा डेरिवेशन प्रूव करना है जिसमें कि राइज इन कैपिलरिटी, सबसे पहली बात की कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, कैपिलरिटी क्या होता है, फिर राइज के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिलरी ट्यूब? एनीवन हैविंग एनी आइडिया? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिलरी ट्यूब? Aditi, what do you mean by capillary tube? Yes. Okay. ठीक है, मान लो ये तो ऐसा डेफिनेशन हो गया जो क्लास के बच्चे समझ पाएंगे हाँ, कि a type of tube whose both terminals are open, okay, upper and lower both terminals are open, like एक ग्लास रॉड ले ले और उसके ऊपर का टर्मिनल, जैसे कि आप टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब का नीचे का बॉटम टर्मिनल क्या होता है, पैक्ड होता है। अगर हम अपर टर्मिनल भी लोअर टर्मिनल भी दोनों टर्मिनल को हम क्या कर दे, ओपन कर दे, तो वो भी कैपिलरी ट्यूब की तरह बिहेव करेगा, बट वो ट्यूब है, कैपिलरी इसलिए नहीं है क्योंकि उसका जो रेडियस है वो क्या है, थोड़ा सा थिक है, वो थोड़ा मोटा है, ठीक है। अभी ऐसे कहते बैठ जाइए कि let us suppose that if we are having a tube, if we are having a tube whose radius is very less as compared to its length, जो उसकी लेंथ है उसकी कंपेयर में जिसका रेडियस है वो बहुत ही कम है। हम अपना हेयर ले लें, हम हेयर ले लें तो हेयर काफी लंबा होता है, लेकिन उसकी अगर कंपेरिजन में देखें तो जो उसका डायमीटर है या फिर जो उसका रेडियस है वो क्या है, बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल कह सकते हैं। Then such type of the tube is said to be the capillary tube, ठीक है, ठीक। A tube whose radius is very less, whose radius is less as compared to its length, then such type of the tube is said to be the capillary tube, and whose both of the terminals are open, ठीक, open होगा। अब कहा जा रहा है कि what do you mean by capillarity, कुछ बेसिक एग्जांपल्स देंगे, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। As you have seen that sometimes whenever we are going for worship, जब हम भगवान की पूजा करने जाते हैं तो हम दिया जलाते हैं, दिया जलाते हैं तो रुई का हम क्या करते हैं, एक बत्ती बनाते हैं, कॉटन थ्रेड एक बनाते हैं और उसे क्या करते हैं, दिए में रखते हैं, तेल डालते हैं, ठीक, आगे जलाते हैं, दिया बुझ जाता है। वो दिया तब तक नहीं जलता है जब तक कि जो सबसे टिप है, जो हम बत्ती जो बनाते हैं उसका जो टिप है वो जब तक कि फ्लूइड से क्या हो जाए, भीग ना जाए, ठीक। तो ये कैसे होता है, हम तो तेल क्या करते हैं, हम तो दिए में डालते हैं, बत्ती तो डालते नहीं। इसीलिए दिवाली के टाइम में क्या करते हैं कि एक छोटे से कटोरी में, वेसल में क्या कर लेते हैं, बाउल में पहले ऑयल पार कर देते हैं और जितना भी बत्ती बना उसमें भिगो लेते हैं और फिर फटाफट दो बत्ती लगाते जाते हैं और तेल डालते जाते हैं। तेल कम ही डालते हैं क्योंकि बत्ती पहले ऑलरेडी भीगी हुई है। तो आप देखेंगे इसीलिए कहा जाता है जब कभी भी हम हेयर वॉश कर लेते हैं, बाल धुल लेते हैं, तो कहते हैं ना कि ये धुलने से पहले लोग क्या कहते हैं, ऑयल लगाते हैं, क्यों, फॉर द प्रॉपर नरिशमेंट। तो हम क्या करते हैं, बाल अगर बड़ा है आपका तो ऐसा नहीं कि बाल में नीचे तेल लगाते हैं, हम हेड पे लगाते हैं, रूट पे लगाते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। तो राइज इन कैपिलरिटी यही होता है कि किसी भी चीज के कॉलम में क्या होता है, धीमे धीमे अगर लिक्विड का राइज हो, लिक्विड कॉलम क्या हो, राइज हो। इसी तरीके से आप जब भी देखिए कि जो बत्ती है, बत्ती में भी क्या होता है, धीमे धीमे क्या करता है, लिक्विड आगे की ओर बढ़ता है, फिर टिप तक पहुंचता है। जब टिप पूरी तरीके से क्या हो जाता है, वेट हो जाता है, तो वो क्या करने लगता है, जैसे ही ये कांटेक्ट ऑफ फायर आता है वो जलना शुरू कर देता है। सो कैपिलरी ट्यूब इज दैट ट्यूब whose radius is less as compared to its length and also open at both of the terminals, then such type of the tube is said to be the capillary tube, and the property of rise in the vertical column, ठीक है, rise of liquid in the vertical column of such type of the tube is said to be the capillarity, ठीक। तो अब कैसे हमें निकालना है, एक्सटेंट फॉर्मूला, ठीक है, या फिर इसे ऐसे लिख कह सकते हैं कि rise in liquid column of a capillary tube, ठीक। हमने बताया कि कैपिलरी ट्यूब इज अ टाइप ऑफ ट्यूब whose length is greater and whose radius is very small, means radius of the tube is very less as compared to its length, and such type of a tube whose both the ends are open is said to be the capillary tube, okay।
Let us suppose if we are having a vessel, if we are having a system, okay, हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हमने क्या किया है, कुछ फ्लूइड को फिल कर दिया है. मान लिया कि कुछ हमने फ्लूइड को भी फिल कर दिया. Let us suppose that if we are having a vessel into which some amount of liquid is poured, हमने पूरा लिक्विड फिल कर दिया, ठीक. And now we are going to do a capillary tube. We are going to dip a capillary tube within that vessel. एक कैपिलरी ट्यूब को हमने इसमें डिप कर दिया. अब जब डिप कर देंगे, रेस्ट कंडीशन में क्या होगा, अभी देखेंगे ध्यान से, ये जो भी इसका सरफेस था, ठीक है, जैसे ही डिप करेंगे तो यहाँ पे मिनिस्कस बन जाएगा, ऐसे कुछ ऐसे हो जाएगा, बनेगा. ये जो मिनिस्कस बनेगा हमने उस दिन बताया था, द एंगल ऑफ कांटेक्ट. एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, द एंगल व्हिच इज फॉर्म्ड इनसाइड ऑफ अ फ्लूइड, ओके, at the contact point of the liquid to the tangent drawn to the ठीक, okay, to the solid. तो अभी आप देखेंगे ध्यान से, ये मेनिस्कस ऐसे बना है, नीचे की ओर ऐसे, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दे हम. तो अगर इसके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे टेंजेंट आएगा, ठीक है. और अगर इससे ड्रॉ कर दे तो इसका टेंजेंट नीचे जाएगा. अगर इसे हम क्या कर दे, थोड़ा सा आगे की ओर एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये थीटा बन जाएगा, क्योंकि हमें लिक्विड के अंदर चाहिए एंगल, ठीक. That the tangent drawn to the solid and tangent drawn to the liquid at the contact point is known as the angle of contact. थीटा लिख सकते हैं. So do anyone have any doubt? ये थीटा हो गया. अगर सेम इस पॉइंट पे भी देखेंगे तो अगर यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ओके, इसे भी एक्सटेंड कर दें और यहाँ भी कर दें तो ये भी जो एंगल मिलेगा वो भी हमें क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा, ओके. अब क्या करें, हमें राइज करना है. आप देखेंगे कि जैसे ही इस ग्लास रॉड को, जो भी कैपिलरी ट्यूब है, जैसे हम डिप करेंगे, सम अमाउंट ऑफ लिक्विड और सम रेज इन द लेवल ऑफ द लिक्विड विल टेक प्लेस इन द वेसल एंड एज वेल एज आल्सो इन द कैपिलरी ट्यूब. तो कैपिलरी ट्यूब में भी कुछ लिक्विड क्या हो जाएगा, ऊपर बढ़ने लगेगा, ठीक है. अब जब लिक्विड में ऊपर बढ़ने लगेगा, राइजिंग ट्यूब होने लगेगा, तो सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि सरफेस टेंशन, लेट अस सपोज दैट द टेंशन वाज T. सरफेस टेंशन लिक्विड का क्या था, T था. अब जब सरफेस टेंशन की वजह से आगे धीमे धीमे जब ये कैपिलरिटी की वजह से ये क्या होगा, धीमे धीमे लिक्विड फ्लो होगा, तो हमें यही कैलकुलेट करना है. वी हैव टू कैलकुलेट. एक क्वेश्चन आपके सीधे सीधे एग्जाम में ऐसे नहीं दिया जाता है कि डिराइव एन इक्वेशन फॉर द राइज इन लिक्विड कॉलम इन अ कैपिलरी ट्यूब. नहीं, ऐसे नहीं दिया जाता है, या फिर एब्सेंट फार्मूला के नाम से भी नहीं दिया जाता है. पूछा कैसे जाता है, हमने यही कहा था लास्ट टाइम पे भी, और जब से हम लाइव क्लास ले रहे हैं तब से हमने यही बताया था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नोइंग हाउ टू डील विद द क्वेश्चन. हम पीछे आते हैं, हम बहुत सारे लोग पढ़ के जाते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता चलता कि क्वेश्चन पूछा क्या है. जब क्वेश्चन पूछा क्या है वो हमें समझ में नहीं आता है तो हम लिख नहीं पाते. और जब चले आते हैं और जैसे क्लासरूम से बाहर आते हैं और हमारा फ्रेंड जो हमारा क्लासमेट वो बोलता है ये वाला क्वेश्चन किए, तो पूछते हो ये क्या कहा, क्या कह रहा था. तो जब वो क्वेश्चन बताते तो कहता है तुम पढ़ के गए थे. तो सबसे पहली बात हमने यही कहा था कि जब कभी भी जहां कहीं भी आप पढ़िए, हर एक टॉपिक के ऊपर कम से कम एटलीस्ट 2 लाइन्स रीड करिए और अपने अकॉर्डिंग सैंपल पेपर जो भी हो आपके पास बुक्स उससे रेफर करते टाइम देखिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक. अब वो जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसके ऊपर लिख लीजिए. तो जब आप पढ़ने चलेंगे, पेंसिल से लिख दीजिए, जब आप पढ़ने चलेंगे फॉर द एग्जामिनेशन और एनी टेस्ट, किसी एग्जामिनेशन या टेस्ट के जब पढ़ने चलेंगे तो उस टाइम में क्या रहेगा, आपको पता रहेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है. इस क्वेश्चन का ये जवाब होगा, ठीक है. क्योंकि हम टॉपिक पढ़ के जाते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे होगा वो हमें पता नहीं होता है, और जब पता नहीं होता तो हम कर नहीं पाते हैं, ठीक. तो सबसे पहले अभी देखेंगे कुछ फोर्स लगेगा जिसकी वजह से, लेट अस सपोज दैट सम अमाउंट ऑफ फोर्स विल एक्ट सो दैट देयर इज अ राइज इन द लिक्विड कॉलम टेक्स प्लेस इन दिस कैपिलरी ट्यूब. होगा एक फोर्स, कुछ फोर्स लगेगा जिसकी वजह से लिक्विड क्या करेगा, धीमे धीमे अपवर्ड डायरेक्शन में एट अ हाइट h तक क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा. तो सबसे पहले पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय, ये हमने कहा ये हाइट क्या है, h है. तो एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिलरिटी, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिलरिटी, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिलरिटी. Its application
What do you mean by capillarity? Okay, its application and calculate the height of rise in liquid column of a capillary tube. फटाफट जल्दी से कैपिलरिटी क्या होती है अपने अपने कॉपी में लिख लीजिए. राइट, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिलरिटी? लिखो. डन. Now listen, if this angle is theta, this is contact angle, so if it is tension T, so it will be T cos theta. Now I am going to resolve the rectangular component of the tension. Okay, so if this is T and if it is along with theta, so it will be T cos theta. It also T cos theta. This will be T sin theta. इसके लिए भी लेंगे तो ये भी वही हो जाएगा. तो हमें क्या पता है कि दैट अभी हमें पता चला था कि सर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2L और यहाँ से मैं निकाला था दैट F इज इक्वल टू 2 into T into 2L. यहाँ से निकाला था. अब जो T है उसका कंपोनेंट क्या कौन सा होगा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दैट इज T cos थीटा. ठीक है. जो भी फोर्स लग के जो भी टेंशन लग के लिक्विड राइज इन ट्यूब ऊपर की ओर होगा वो किससे कंपनसेट होगा? ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम व्हिच इज मूविंग इन द अपर डायरेक्शन. जितना लिक्विड ऊपर जा रहा है फोर्स लगेगा ऊपर जाएगा, वो कंपनसेट किससे होगा? वेट ऑफ द लिक्विड व्हिच एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. और हमें पता है कि अगर अपवर्ड में लगने वाली फोर्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स का सम अगर जीरो हो जाए तो कह सकते हैं कि दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ओके, सो फर्स्ट दिस इज F इज इक्वल टू T cos थीटा इनटू अभी क्या होता है L जो है वो L कितना होगा? 2 इनटू इसे भी लिख सकते हैं 2 पाई R. कैसे बताओ? बिकॉज अभी हम कहते हैं ना कि अभी अब आपने देखा होगा लास्ट टाइम हमने बताया था कि अगर आपके पास लेमन हो, लेमन को कट करिए. लेमन को कट करते हैं तो कट करने में जो आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिलता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है. तो सरकमफेरेंस लेते हैं. तो उस दिन भी बताया कि द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट ऑफ लेंथ इज नोन एज द सरफेस टेंशन. एंड जब आपको स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा रहे थे तो उसमें भी बताया था कि द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट ऑफ एरिया, द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बताया था. हाँ, दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल और फ्लैटर. और बताया था कि लॉन्गिट्यूडिनल वाले में आपको ये बताया था कि एक टेंसाइल होता है, टेंसाइल कंप्रेसिव भी बताया था. ठीक. तो जब कभी भी जो भी फोर्स नॉर्मल फोर्स होगा तो दो ही टाइप के आपके चेंजेस हो सकते हैं किसी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमें जो शो करता है. अगर कोई कह दे कि सर जो हमारा स्ट्रेस है, जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है, उस फोर्स का जो नेचर है वो नॉर्मल फोर्स है. इफ द फोर्स इज इन बिहेवियर एज अ नॉर्मल फोर्स देन the elongation takes place will be that is along the length that is longitudinal हो जाएगा या तो फिर वॉल्यूमेट्रिक होगा. आप पढ़ेंगे भी कि अगर जो फोर्स है उसका नेचर कैसा है, नॉर्मल है. तो आप देखे भी होंगे कि जब आपने बल्क मॉडुलस पढ़ा हुआ है तो बल्क मॉडुलस में लिखा हुआ है नॉर्मल फोर्स अपॉन स्ट्रेस, नॉर्मल फोर्स अपॉन दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम. पढ़ा था जिसे स्मॉल p से लिखा गया था, P अपॉन डेल्टा V बाई V लिखा था.
तो बल्क मॉडुलस में याद रखिएगा कि नॉर्मल फोर्स होगा। अब यहाँ जो फोर्स हो रहा है वो कंपनसेट हो रहा है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे तो हमें जो एरिया क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो सर्कुलर शेप में मिलेगा, ठीक है। और उसका सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r होता है, ठीक। हमने f कैलकुलेट कर लिया। अब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कितना वॉल्यूम है लिक्विड का जो कि राइजन ट्यूब हुआ है एट अ हाइट h। सो लिखिए, राइट डाउन। Let us suppose small r is the, सुबह किसे कौन याद करने लगा? घर वाले याद कर रहे हैं, दूसरे का भी नाश्ता रखा तक आगे चली गई। देखो लिखो, let us suppose that small r is the radius of capillary tube, T is tension, theta is angle of contact. Okay, so now what we have to do, what I have said, if you are unable to see, I have written here, let us suppose that small r is the radius of capillary tube, where the radius is very less as compared to the length of the tube. Okay, T is the tension and theta is the angle of contact. We have to calculate rise in the liquid column at a height till height h तक, यहाँ तक निकालना है। तो सबसे पहले देख लें कितना वॉल्यूम यहाँ पर इनहेंस हुआ है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। So now we are going to calculate rise in volume of liquid देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, राइज इन वॉल्यूम इन वर्टिकल कॉलम ऑफ द लिक्विड। ये किसके बराबर होगा? अगर ध्यान से देखो, हम कुछ डायग्राम से बता रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये लिक्विड था, इसके अंदर हमने क्या किया, जैसे ही कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट किया कुछ ऐसे मेनिस्कस बना, हमने एरिया क्रॉस सेक्शन ऊपर का ये ले लिया था। अभी हम कह दें कि लेट अस सपोज दैट इस हाइट h तक हमारा लिक्विड क्या हो गया, राइजिंग ट्यूब हो गया है, ठीक, राइजिंग ट्यूब हो गया। हमें वॉल्यूम निकालना है, तो ध्यान से देखेंगे तो अगर हम क्या कर ले, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एट अ हाइट h तक का निकाल ले, प्लस वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कॉलम एट अ हाइट h ऑफ द सिलेंडर यहां तक का निकाल ले, प्लस अगर आप देखेंगे तो ये कर्व सरफेस बन रहा है, इस कर्व सरफेस का भी अगर हम क्या कर ले, एक हम क्या निकाल ले, इसका भी वॉल्यूम निकाल ले, जो इस कर्व सरफेस में जितना वॉल्यूम लिक्विड का फील्ड होगा वो भी निकाल ले, दोनों को ऐड कर दे, तो अगर टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगा तो हम बता देंगे कि कितना राइज हुआ। और अगर हमें लिक्विड जो कॉलम में राइज हुआ है उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका मास निकाल लेंगे, क्योंकि वेट निकालने के लिए क्या होता है, W=m/g, मास निकाल लेंगे, उसे ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम अभी हमें पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, हम एम बता रहे हैं, जैसे उस दिन बर्नौली थ्योरम में बताया था क्या क्या करना है, सेम उसी तरीके से बता रहे हैं, याद रखिएगा। हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा, अगर वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं, मास निकाल सकते हैं ना। अगर वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो मास निकल जाएगा, और सी में जी से मल्टीप्लाई कर दे तो ये वेट के बराबर हो जाएगा। वेट निकाल लेंगे, जो वेट आएगा और वो जो अपर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था उससे इक्वेट कर देंगे तो राइजिंग कैपेसिटी मिल जाएगी हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे राइज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कॉलम विल बी इक्वल्स टू volume of liquid raised at height h in vertical column or vertical cylinder
प्लस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड filled in hemisphere, that is the that curved surface is like hemisphere, ऐसे बना हुआ, आधा ही है, ठीक है, पूरा होता तो स्फीयर होता और आधा है तो that is hemisphere है। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले सिलेंडर का हमें, ये जो सिलेंडर है एट हाइट h तक, तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h, सो पाई आर स्क्वायर इनटू h, ये पता चल गया। अगर आप ध्यान से देखो, अब जो सेकंड पोर्शन है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फिल्ड, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा अगर पूरे सिलेंडर का अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर है जो, ठीक, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक बार सिलेंडर का ये जो इतना पोर्शन है इसका वॉल्यूम निकाल लें और उसको क्या कर ले, जो कर्व पोर्शन में हेमिस्फीयर की वजह से जो बना हुआ है उसे सब्ट्रैक्ट कर ले, तो ये पता चल जाएगा और ये पता है, दोनों को ऐड कर देंगे, करेक्ट। तो अब बाकी वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, क्योंकि h होता है ना पाई आर स्क्वायर h, ठीक। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो h क्या है, यहाँ पर r है, दैट इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। तो पाई आर स्क्वायर h की जगह, जब h की जगह आप r रखोगे तो क्या मिलेगा, पाई आर क्यूब माइनस दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। अगर स्फीयर होता तो उसका वॉल्यूम क्या होता, 4/3 पाई आर क्यूब, बट हेमिस्फीयर है तो हाफ हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। Any doubt to anyone? Yes. Once again. यहाँ से देखो, हमने कहा कि ये जो लिक्विड राइज हो रहा है वो किसके बराबर होगा, ठीक। तो अभी हमने कहा जो लिक्विड राइज हो रहा है इन कॉलम में, अगर हमें क्या पता चल जाए, इस हाइट h तक कितना लिक्विड फील्ड हुआ है, और साथ ही साथ ये जो देखोगे तो एक हेमिस्फीयर बन जा रहा है, ऐसे कर्व बन जा रहा है। अगर यहाँ तक लिक्विड का ये वॉल्यूम निकाल लें और ये वॉल्यूम निकाल लें, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगा कितना लिक्विड गया है। उसे निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले सिलेंडर का यहाँ तक का हमने वॉल्यूम निकाला। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h होता है, लिख दिया पाई आर स्क्वायर h, लिख दिया, ठीक। अगर ध्यान से देखोगे वो जो शेप बना कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक। अगर हम इसको एक ऐसे पूरा एक स्फीयर बना दें, ऐसे इसको टच करते हैं कैसा, ऐसे सिलेंडर बना दें। इस सिलेंडर देखोगे ध्यान से, ये सिलेंडर है, ऐसे कैपिलरी ट्यूब था, इस हाइट h तक का हमने ये लिख दिया है, ठीक। अगर इसे पूरा सिलेंडर हम अज्यूम कर लेते हैं, इस सिलेंडर में से ये जो पोर्शन है इसको हम सेपरेट कर देंगे तो कितना लिक्विड फील्ड है पता चल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, r है, तो उसके लिए लिख दिया है पाई आर क्यूब। ये सिलेंडर का अगर इस वाले सिलेंडर मान लेते हैं, दैट इज ए बी सी डी या पी क्यू आर मान लो, तो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h होता है, h ये हो जाएगा r के बराबर, तो दैट इज पाई आर क्यूब हो गया, ठीक। माइनस क्या करते हैं हम, ये जो कर्व है, जो मेनिस्कस बना हुआ है, जो कर्व है हेमिस्फीयर है, उसके वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दे, दैट इज हेमी है, मींस हाफ हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा। अभी क्लियर है सभी को? Yes, sir. नाउ पाई आर स्क्वायर h प्लस यहां पर से देखेंगे आप तो ये क्या बचेगा, पाई आर क्यूब अपॉन 3, यही बचेगा। एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक। यहां पर से अगर हम पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लें, ठीक, h प्लस आर बाई 3, ये हमें मिल गया क्या, राइज इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हमें मिल गया, ठीक, राइज मिल गया। क्या हो गया बोलो, इन डाउट, ठीक, ये हमें वॉल्यूम मिल गया, कितना वॉल्यूम ऊपर हुआ है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि सर आपने तो बताया कि जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और एक वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अगर इन दोनों का सम 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि ये बैलेंस या फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा
कि हमें इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, F और W को इक्वेट करना पड़ेगा। तो W क्या होता है M इंटू जी। हमें क्या मिला, वॉल्यूम मिला है। तो M निकालने के लिए अभी क्या बताया है, ठीक, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा, मास निकल जाएगा, उसमें जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर अगर मास निकालना है तो इसमें हम रो से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। तो मास ऑफ द लिक्विड रेज्ड, मास of liquid raised is equals to pi r square h plus r by 3 into rho लिख सकते हैं, ठीक। यहां से वेट निकालना हो तो वेट के लिए क्या कर देंगे, बस जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेट ऑफ लिक्विड, देयरफॉर वेट ऑफ लिक्विड raised is equals to pi r square h plus r by 3, ठीक, रो into g लिख सकते हैं। Yes, sir. जो f निकाला था उसे इक्वेशन 1 कर दीजिए, जो अभी निकाला उसे इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए, ठीक ठीक। दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल होंगे तो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम का स्टेट मिल जाएगा। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, राइट डाउन, इक्वेट करिए और बताइए हमें क्या आ रहा है। हम इधर करते चलेंगे, आप अपना करते चलिए। F is equals to 2t पाई r cos थीटा निकाला था, ठीक है, उसे इस W से इक्वेट करिए। स्टार्ट टू इक्वेट। First equation already you have written that F is equals to 2 pi r t cos theta लिखा था, देखो ये लिखा था 2t cos theta into pi r is equals to, ये वेट से हम इक्वेट करेंगे pi r square h plus r by 3 रो into g। r से r एक कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, so we will get t is equals to, ठीक, h plus r by 3, ठीक, एक r बचा रह गया है, r रो g अपॉन 2 cos थीटा, ये मिला, ठीक है। जब हाइट h तक पहुंच जाएंगे तो कितना सरफेस टेंशन होगा ये हमें मिल जाएगा। Clear to everyone? अभी कोई क्या दे कि सर as you have said that हाइट, देखो ध्यान से, ये जो हाइट है वो जो राइज इन ट्यूब हो रहा है, प्लीज सी हियर, सभी लोग इधर देखेंगे, the raise in or the rise in the liquid column at a height h is greater than, h is much more greater than the radius of the capillary tube, ठीक। तो अगर एक तो पहली बार रेडियस बहुत कम था, उसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो और भी कम क्वांटिटी मिल जाएगी। इट मींस दैट r by 3 is very less than as compared to the height of the liquid raised in the vertical columns, am I right? नेग्लिजिबल कर सकते हैं, इस नेग्लिजिबल है तो उसे हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर दें। अगर यहां से निगलेक्ट कर देंगे, अगर ऐसे लिखेंगे इफ, रुक जाए, हमने ये लिखा कि इफ rise in liquid column H is much more greater than R by 3, then R by 3 will be neglected, neglect कर दीजिए। अब क्या एक्सप्रेशन मिल जाएगा, सरफेस टेंशन एट अ हाइट H will be T is equals to R by 3 को गायब कर दे, ठीक, तो क्या मिल जाएगा H रो G into R upon 2 cos थीटा, मिला? अदिति आया, लिखो करो, यहाँ तक आ गया, क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? आपको क्या दे सर, आपने तो कहा था कि जो एंगल थीटा इज हियर,
थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक, एक ही क्वेश्चन में, एक ही डेरिवेशन में 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि कैलकुलेट द राइज इन ट्यूब एट अ हाइट h, तो सरफेस टेंशन निकाल दिया। ठीक, क्या है कि सर अगर इफ अ कंडीशन, इफ हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इज मच मोर ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, तो ये डेरिवेशन हो जाएगा। आपको कहते हैं कि सर द लिक्विड इन विच द कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इज प्योर वाटर। अगर प्योर वाटर होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि हमारा अगर इफ द ग्लास रॉड और दैट द कैपिलरी ट्यूब which we are taking is so clean and the water is so pure, then we can say that the theta will be 0 and cos 0 is equals to 1. So at that time that T becomes H rho G into R upon 2. This is the expression of the surface tension of the liquid rise in a vertical column till height h। ठीक, अगर हमें ध्यान से देखो कि अगर हमें h निकालना है तो सरफेस टेंशन पता हो, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पता हो, फिर कैपिलरी ट्यूब का रेडियस पता हो, g हमें पता ही है 9.8, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। ओके, ये कब का कंडीशन होगा? जबकि फ्लूइड इज प्योर, और ये कंडीशन है वाटर का। थीटा क्या हो जाएगा? 0। ठीक, 0 डिग्री हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, इट मींस दैट विद इन वन डेरिवेशन देयर मे बी द 3 टाइप ऑफ द क्वेश्चन कैन बी फॉर्म। ठीक है, पहला एट अ हाइट h पे कितना लिक्विड रेज होगा, फिर अगर कह दिया जाए कि वो जो लिक्विड राइज हो रहा है H कॉलम तक राइज हो रहा है, अगर वो क्या है इज मच मोर ग्रेटर एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, तो क्या एक्सप्रेशन होगा? और कह दे हम सीधे सीधे, मेरा मन किया कि हम ये सब ना पूछे और हम कह दे कि व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन whenever a capillary tube is dipped in a pure water, inside of the pure water, तो सीधे लिख देंगे कि सर here theta angle of contact becomes 0, so at that time T becomes H rho G R upon 2. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. Please note down, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के भी बेसिस पे, बहुत बार कैपिलरी का क्वेश्चन पूछा जाता है।